Very good morning and warm welcome to everyone joining us for today's webinar in the Science to Smile series of Flora Fauna Science Foundation. We are delighted to have you here as we delve into the exciting opportunities that aroma crops and products offer for fostering village-level entrepreneurship. Our lead speaker for the day is Dr. Rajesh Verma, which is here. Hello, sir. And we are honored to have Professor S.P.S. Khanuja, Dr. A.K. Singh, and other esteemed members of the foundation. Let's embark on this enriching journey of knowledge and sharing together. To start with, I request Professor S.P.S. Khanuja to please initiate the session. Sir, please. Sir, you have to unmute yourself, please. Thank you. Thank you, Manika. नमस्कार टू ऑल, आप सभी का इस फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के मंच पर स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन आपका परिचय कई विशेषज्ञों से करवाती रहती है जो कि उद्यमिता या विज्ञान से संबंध रखते हैं और कैसे विज्ञान समाज तक पहुँचे और उद्यमिता पैदा कर सके, इस विषय पर हम काफ़ी चर्चा करते हैं। हम हर वर्ष एक थीम लेकर चलते हैं और इस वर्ष का थीम है विज्ञान से मुस्कान, साइंस टू स्माइल्स। So I welcome Dr. Rajesh Verma to this platform, who readily agreed when I requested him to give this talk on aroma opportunities. The reason being that Dr. Verma has been in aroma mission for a long time, and in fact aroma mission is the branch which came out. The origin lies in BioVillage mission, which initially occurred when Dr. Rajesh Verma was in Uttarakhand Bageshwar center. तो आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज डॉक्टर राजेश वर्मा जो अरोमा या जो सघन पौधे हैं और उनके उत्पाद से कैसे उद्यमिता उत्पन्न हो सकती है, विज्ञान से मुस्कान विषय के अंतर्गत आपसे आपको बताने जा रहे हैं और आपसे चर्चा के लिए भी तत्पर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर वर्ष एक विषय लेकर चलते हैं और इस वर्ष का विषय है विज्ञान से मुस्कान, और इसी से संबंधित दो और विषय मैं आपको बताना चाहूँगा। एक था कृषि से खुशी और एक फसल से सफल। तो इन विषयों से होते हुए आज हम विज्ञान से मुस्कान पे पहुँचे हैं, जहाँ हम विज्ञान के बीच की सभी दीवारें गिराकर कैसे मल्टी या बहुत सारी विज्ञान की जो स्ट्रीम्स हैं उनको मिलाकर कार्य कर सकते हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं आज के विषय की, जो कि एरोमा क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स पे है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तीन विषय सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। एग्रीकल्चर, जहां आप इसका उत्पादन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे आप इन पौधों की गुणवत्ता जेनेटिक स्तर पर और वैरायटी के स्तर पर अच्छी करते हैं। और फिर तीसरा आता है केमिकल साइंसेज एंड केमिकल इंजीनियरिंग, जहाँ इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, डिस्टिलेशन की जाती है, ऑप्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर सिटिंग ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which has its roots in aroma mission, to which Dr. Rajesh Verma belongs at CMAP. But just to let you know history of that, before aroma mission, or the base of aroma mission, or the seeds of aroma mission lie in BioVillage mission of CMAP, which started in 2001. And at that time, Dr. Rajesh Verma was at CMAP Research Center at Purla in Bageshwar in Uttarakhand, where we had taken up on a very big scale geranium. Geranium, as you know, is a crop which gives you oil, which has so many wonderful properties, right from the aroma or the fragrance that it gives, like rose-like fragrance. It goes into perfumery industry and therefore is an export item. Plus, it also has molecules which have medicinal value. And in 2006, we had given
In fact, I only had given a term aromaceuticals in a meeting of Medicinal Aromatic Plant Society of India in Dehradun, where we discussed with industry the possibilities of converting aromas into pharmaceuticals and therefore the term aromaceuticals. So all these opportunities are occurring there, and Dr. Verma has been into not only cultivation or maintaining the cultures of that, but also development of agro packages for the varieties that CMAP releases, or the varieties or plants that have potential to be developed into high value essential oil and products. So we look forward to the exposure to all these opportunities, and then we will be having time to discuss. You may have questions on aroma utilization at your level. Also, I would like to tell you that in February, mid-February, on the Saturday, I think 15th February, we have a summit, which is our annual summit, Flora Fauna Innovation Summit. And that summit, we would be discussing the innovations done by all of you. And therefore, that will be an interactive session or interactive event where you could be interacting directly with many experts, including Dr. Verma, Dr. A.K. Singh, and many others coming from different institutions. So you must lock this date in your diaries. And those of you who would like to come, we will be informing you about the venue, which will be near Lucknow, only in a village. And we would be meeting there too. Also, next month, in December, mid-December, we have Professor Sushil Kumar Innovation Award function, which will be held in National Botanical Research Institute. And those of you who are interested in science and also entrepreneurship from that and getting training from NBRI may like to see that event also. So with these words and hoping that Dr. Verma is going to give us now today's current status as well as the future opportunities, I request Dr. Manika to take over. Thank you, sir. It's my pleasure to introduce Dr. Verma. Dr. Rajesh Kumar Verma, Senior Principal Scientist and Head of Crop Production and Protection at CSIR CMAP, is a distinguished scientist with extensive expertise in soil science, crop production, and agrotechnology for medicinal and aromatic plants. Holding a PhD in soil science and agriculture chemistry, Dr. Verma has made groundbreaking contributions in areas such as nutrient management, bioremediation of polluted soil, stress soil management, and the development of sustainable agroecosystems. His work has focused on enhancing nutrient efficiency, phytoremediation, and recycling distillation waste to support soil fertility and crop productivity. With over 100 research papers, 15 developed plant varieties, and patents to his credit, Dr. Verma has also played a pivotal role in translating scientific advancements into rural development initiatives, such as aroma biovillages and sustainable maps, that is, medicinal aromatic plant clusters. Recognized with prestigious awards and global citations, he is a leading advocate for leveraging science to empower communities, foster entrepreneurship, and address environmental challenges. With this short bio, I request Dr. Verma for his talk. So please. So please unmute yourself. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Manika, for kind words. Respected Kanuja sir, Chairman of Flora Fauna Science Foundation and mentor, Dr. A.K. Singh, and our audience of this today web series. It is a pleasure to me giving the opportunity to deliver a talk in this FFSF web series. And this is
today, my today talk is Aroma Crafts and Products as a partnership for village level entrepreneurship. Next, sir. Generally, the entrepreneurship is creating, developing, and managing a new business ventures to generate a profit. It comes from innovations, improve, increase the risk bearing capacity and ability to identify and get hold of opportunities. Entrepreneurs drive economic growth by introducing new products or services, solving problems, and creating employment. Village entrepreneurship जनरली जो ज्यादातर हम देखते हैं, जो विलेज एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात करते हैं, जो ये प्रोग्राम या जो उद्देश्य था फ्लोरा फोना फाउंडेशन साइंस का, वो कनुजा सर जो हमारे मेंटर भी हैं और हम लोगों को हमेशा ये कहते रहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब तक आप जो गांव के अंतिम छोर या कह लें जो बिल्कुल पिछड़ा इलाका वहां तक नहीं ले जाते हैं और उससे वहां के लोग नहीं अवेयर होते हैं, तब तक वो टेक्नोलॉजी देश के हित में या कह लें सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल नहीं हो। एज एग्रीकल्चरिस्ट हम सभी जानते हैं कि जो गाँव में या रूरल एरिया में जो रिसोर्सेज है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, वो अगर वो हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लें तो शायद एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो पार्ट है वो हम कंप्लीट। तो दूसरा ये होगा जो सबसे एंटरप्रेन्योरशिप रूरल एरिया में या विलेज लेवल पे इम्पोर्टेंट है, उसका कारण है कि ज्यादातर जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन फ्रॉम सेमी अर्बन एरिया टू रूरल, जो अर्बन एरिया में रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, उसको चेक करने के लिए जो विलेज लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना वो बहुत आवश्यक हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में। जैसे हम सभी कहते हैं कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो वहाँ की गरीबी कैसे हम दूर करें या ये माइग्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, एम्प्लॉयमेंट को कैसे इम्प्रूव करें रूरल एरियाज में, इसलिए ये विलेज लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप एक महत्वपूर्ण रोल इसका होता है। अगर आप देखें नेक्स्ट सर, इम्पोर्टेंस रूरल विलेज एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। अगर आप देखें कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो बहुत, यस सर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ये जो होता है इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है रूरल लेवल पे विलेज लेवल पे, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहां पे अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे। जो माइग्रेशन है वो कंट्रोल होगा। जो वहां पर सामाजिक या इस तरह की जो चीजें हैं जो उनमें आपस में दुराव है उससे भी कम होगा, आपस में कनेक्ट होंगे। ऐसे बहुत सी सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करते हैं तो ये होगा। अगर एरोमेटिक प्लांट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें जिसमें फ्रॉम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मल्टीप्लिकेशन से लेकर के और प्रोसेसिंग अप टू वैल्यू एडिशन तक वो बहुत से आते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एंड फ्रेगनेंस में एरोमा का बहुत रोल है और इसको इसके एंटरप्रेन्योर्स के रूप में हम ले जा सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के रूप में बहुत से ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं जिसमें एरोमेटिक प्लांट्स यूज हो रहे हैं। स्पाइसेस के रूप में भी हमारे एरोमेटिक प्लांट्स यूज हो रहे हैं। बहुत से ऐसे नेचुरल पेस्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड का उपयोग उपयोग हो रहा है, रिपेलेंट के रूप में हो रहे हैं और हर्बल बेवरेज भी है, उसमें भी ये चीजें ज्यादातर उपयोग हो रही। जब हम कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ न कुछ रिस्क भी होता है। अगर हम स्टार्ट करने के पहले उसके बारे में अपने भली बात समझ लें, अगर जान लें, तो शायद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो शुरू करने जा रहे हैं, उसमें उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और शायद वो सफल भी हो पाएगा। जैसे टेक्निकल रिस्क, कोई भी जो काम हम शुरू करते हैं उसमें टेक्निकल चीजें बहुत सी आती हैं। उस टेक्निकल
जो प्रोसेस, सर प्लीज सर, बैक सर, हाँ यस सर, उसमें जो टेक्निकल चीजें आती हैं उनको हम ध्यान में रखें। इकोनॉमिक्स, बहुत से रॉ मटेरियल कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, उनके रेट में बहुत फ्लक्चुएशंस आता है, या उसकी अवेलेबिलिटी, उसको हम थोड़ा सा, उसमें भी रिस्क होता है, उसको हम प्रयास करें। सोशल रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आप एक विलेज में डेवलप कर रहे हैं, दूसरे विलेज के लोग उसको कितना अडॉप्ट करते हैं, कितना समझ पाते हैं, इसके लिए भी हम अपने को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि जब आप इस तरह के काम करें तो उसको भी ध्यान में रखें। इन्वायरमेंटल रिस्क भी होता है, बहुत से आपस में जो आजकल कोई भी रूरल एरिया में करें, आप बहुत से ऐसे प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं, अगर कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं या रूरल एरियाज में, उन सबको करना होगा। इसी तरह से इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे रूरल एरिया में अगर आप देखें, उनको जो नॉलेज है बहुत अल्प ज्ञान होता है, किसी भी चीज को अगर एंटरप्रेन्योर शुरू करें कि कैसे, अगर एरोमेटिक की बात करें कि उसका कल्टीवेशन, क्वालिटी, प्लांटिंग मटेरियल, बहुत सी चीजें आती हैं। उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है रूरल एरिया में, स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, उनको टेक्निकल नो हाउ की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उनके पास नहीं होता है कि इस तरह के इंडस्ट्री जब वो लगाएं, तो ये भी, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स उनके पास आती है। एक जो इन्वायरमेंट बनता है इंडस्ट्रियल जोन में, इंडस्ट्रियल एरिया में, शायद वो उसकी कमी होती है, मार्केट की बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है, या बहुत से सोशल या कल्चरल या इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा, नहीं होता है, मार्केट का डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पर उसमें काम करने वाले जो लोग होंगे उनकी स्किल कैसी होगी, ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो क्वालिटी चेक के लिए जो प्रोडक्ट है वो किस तरह कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये भी एक ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं जो उनके सामने प्रॉब्लम आ सकती हैं। दूसरा होता है कि इन्वेस्ट इन वेंचर, जो लोग डरते हैं कि इसमें लगाएंगे हमको वापस मिलेगा कि नहीं, रिटर्न मिलेगा कि नहीं, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप जब हम डेवलप करते हैं इसमें भी एक समस्या आती है। और मार्केटिंग इशू, जैसे मैंने कहा कि हर स्टेज पे, चाहे उनको रॉ मटेरियल से लेकर के उनके अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उसको ले जाने में भी प्रॉब्लम, मतलब ये सारी आती है। अगर एरोमेटिक प्लांट की बात करें प्रोडक्ट की, तो जैसे अभी सर कह रहे थे, ये वास्तव में एक इंटरप्रेनर्स के लिए रूरल एरिया में एक वरदान है। और सर ने जब सीमैप में एज ए डायरेक्टर, जो आज विलेज, एरोमा विलेज हो या फार्मा विलेज हो, जो भी आज सीमैप इसमें पूरे देश में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उसमें शायद सर का बहुत बड़ा योगदान है। और शायद वही विलेज प्रोग्राम आज के परिपेक्ष में वो एंटरप्रेन्योर के रूप में बहुतों को स्थापित कर रहा है। अगर देखें एरोमेटिक प्लांट ट्रेड इन वर्ल्ड लेवल पे, अगर देखें तो मोर देन 250 टाइप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल हैं जिनका ट्रेड वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है। और उन पे वैल्यू अगर एडिशन देखें, वैल्यू एडेड जो आपके एसेंशियल ऑयल हैं, उनका 1.2 बिलियन US$ के आसपास ट्रेडिंग हो रही है। अगर ग्लोबल ट्रेड देखें फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस का, वो लगभग 20 बिलियन US$ के आसपास है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, और इसका भी अगर आप देखें 150 बिलियन US$ के आसपास इसकी ट्रेडिंग हो रही है। ये सारे जो एसेंशियल वेस्ट ऑयल हैं, आप देखें उसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो चाइना जो है 24% शेयर के आसपास उसका एक्सपोर्ट है, इंडिया जो है 16% के आसपास है, और बाकी कंट्री कनाडा 17%, हांगकांग 15%। कहने का मतलब इंडिया जो है वो एक लीडिंग कंट्री के रूप में जो इसमें उभर कर आ रही है। अगर हमारे देश की एरोमा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी देखें तो जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है, अगर इधर आप लगभग एक डिकेड्स के, मतलब 10 साल, पिछले 10-15 सालों का अगर आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं और देखते हैं, वो तो जो कल्टीवेशन एरिया था वो लगभग 400,000 हेक्टेयर के आसपास था, जो 15-16 तक वो बढ़ करके लगभग वो 600+ हेक्टेयर के आसपास हो गया। और प्रोडक्टिविटी जो हमारी लगभग वो 300 या 400 के आसपास 1000 हेक्टेयर मीट्रिक टन थी, वो लगभग 1000+ मीट्रिक टन के आसपास हो गई। इसी तरह अगर
पर केजी प्रोडक्टिविटी आप एरोमेटिक प्लांट की देखें, एरोमा क्रॉप की देखें, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 100 केजी पर हेक्टेयर से बढ़ करके और वो 190 केजी पर हेक्टेयर के आसपास हो गई एवरेज, अगर आप जितने भी एरोमेटिक प्लांट कमर्शियली ग्रो हो रहे हैं उनको देखें। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर। सर नेक्स्ट। ये शेयरिंग कहीं स्टॉप हो गई भाई। हाँ। मैं फिर से जरा जस्ट मिनट, सम टेक्निकल स्लैंग इज देयर परहैप्स, तो इसलिए आप कंटिन्यू रखिए, मैं ट्राई करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, मैं यहाँ से करता हूँ, आप इसको सर अनशेयर करिए। हाँ, एक सर लड़का आ गया है उसका, जरा मैं सर यहाँ से करता हूँ, आप वहां से अनशेयर एक कर दीजिए। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, आप वहां से सर अनशेयर कर दीजिए माइक। एक सेकंड भाई। हाँ, मैंने अनशेयर कर दिया वर्मा जी, आप देखिए। मैं शेयर कर रहा हूँ सर। साथियों, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण डॉक्टर शर्मा का जो व्याख्यान है बीच में रुक गया है, आप कृपया प्रतीक्षा करें। फुल स्क्रीन में यहाँ से जी, दिख रहा है। हो गया सर? हाँ जी, जी हो गया। अब इसको उसी स्लाइड्स पे चले जाइए। ओके सर, थैंक यू, सॉरी फॉर द प्लीज 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 गो अहेड। सॉरी फॉर डिस्टरप्शन फ्रेंड्स। ओके प्लीज। सर। इसी तरह अगर हम देखते हैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट में, तो अभी तक जो मैक्सिमम जो एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट है उनमें जो सीमैप के द्वारा जो जिसमें एक कंप्लीट एग्रो पैकेज डेवलप किया गया है और कुछ उन्नतशील जो प्रोमोजिंग या कह लें कि जो वैरायटी डेवलप हुई है, जैसे मेंथाल मिंट है। मेंथाल मिंट में अगर देखें 80 के दशक से लेकर के और अब तक जो इंडिया एक लीडिंग कंट्री के रूप में उभरी है और अग्रणी देश के रूप में वो अपना स्थान पाया है, तो कोसी का उसमें जो सीमैप की कोसी प्रजात है उसका बहुत योगदान है। अभी जल्दी में सीमैप ने सीम उन्नति प्रजात का विकास किया है, जो कि आप अगर देखेंगे तो जो मेंथाल मिंट ग्रोइंग एरिया है उसमें 80% जो किसान हैं इस प्रजात को अब उगा रहे हैं। तो इस तरह से सीमैप ने जैसे लेमन ग्रास में कृष्णा, पामारोजा में PRC1 और सिट्रोनेला में बायो31, रोज में नूरजहां, तुलसी में सिम सौम्या, विटिवर में KS1 सिम वृद्धि, जेरेनियम में सिम पवन से स्टार्ट करके अब सीमैप ने सिम भारत वैरायटी डेवलप की है अभी चाइनीज जेरेनियम में, और ये पूरे महाराष्ट्र रीजन में इसकी जो खेती किसान कर रहे हैं। तो इस तरह से सीमैप ने जो प्रजातियों में जो मुख्य एरोमेटिक प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं उनमें जो उन्नत प्रजातियों का विकास किया और ये प्रजातियां किसानों तक ये सीमैप के वैज्ञानिकों द्वारा पहुंचाई गई। अगर एग्री बिजनेस की बात करते हैं, एग्री बिजनेस की बात अगर हम करते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी एरोमेटिक प्लांट्स में अपार संभावनाएं हैं। इस हम सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो एरोमेटिक प्लांट है वो इंडस्ट्रियल क्रॉप के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए इनका जो यूज है चाहे वो एरोमा इंडस्ट्री में हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, फ्लेवर इंडस्ट्री में हो या फ्रेग्रेंस इंडस्ट्रीज में, ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज इसका उपयोग कर रही हैं रॉ मटेरियल से लेकर के, और इसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो सोसाइटी तक पहुंच रही है। इसमें कहाँ कहाँ
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या संभावनाएं हैं, या ग्रामीण के प्रदेश के जो लोग हैं वो कहाँ पर इसमें अपने को पाते हैं और कैसे उसको कर सकते हैं। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मल्टीप्लिकेशन, या कह लें कि इसको बनाने के लिए नर्सरी के रूप में भी अपने को स्थापित करते हैं, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद पाने के लिए ये निश्चित है कि आपको जो आपकी जो प्रजाति हो, जो वैरायटी हो, वो अच्छी होनी चाहिए। वो वैरायटी तभी अच्छी होगी जब वो किसी संस्थान से लेकर के या किसी के देख रेख में उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो उसका व्यवसायिक खेती में जा सकते। तो यहाँ पर भी आप अपने को एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में स्थापित कर सकते हैं रीजन वाइज। कल्टीवेशन, ये भी रूरल एरिया के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लिवलीहुड इंप्रूवमेंट के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एरोमेटिक प्लांट में। प्रोसेसिंग भी एक इसमें है, जिसमें आप एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, उसके प्रोसेसिंग के लिए डिस्टिलेशन यूनिट की जरूरत होती है उसके लिए, या कोई इसमें एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं, हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट है, या इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या कंपाउंड है उसको आप अलग करना चाहते हैं, जैसे मेंथॉल मिंट है, मेंथॉल मिंट ऑयल है, उसमें आप मेंथॉल अलग करना चाहते हैं, मेंथोप्यूरान लेना चाहते हैं, वो सारे भी एक आप व्यवसाय के रूप में उसको अपने को स्थापित कर सकते हैं। या इसका जो बाई प्रोडक्ट्स है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट। मशरूम प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, कटलरी के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, या जहां पर एरोमेटिक क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं वहां पर आप एपीकल्चर भी कर सकते हैं। इसका जो परफ्यूम्ड वाटर है, कहने का मतलब हाइड्रोसॉल है, जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका भी आजकल एंटरप्रेन्योर के रूप में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में इसको कलेक्ट करके बना रहे हैं, और इसको बॉटनिकल पेस्टिसाइड के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इसके द्वारा छोटी छोटी इंडस्ट्री जो गाँव के लिए है, गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे आप जो फ्रेगनेंट सोप बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, अतर, परफ्यूम, अगरबत्ती, या रोज से जो है वो गुलकंद बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सी चीजें भी प्रोडक्ट के रूप में बनाई जा सकती है। मार्केटिंग भी, इन सब की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, चाहे सीड या क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल आप मल्टीप्लाई करके और किसानों को दे सकते हैं। सेपलिंग भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो सेपलिंग बनाना बहुत आसान नहीं होता, जैसे जेरेनियम है या बहुत से ऐसे क्रॉप हैं, उनको सेपलिंग के रूप में आप दे सकते हैं, जो कि लोग इसको स्पेशली अर्बन एरिया में जो लोगों अपने पॉट कल्चर में या अपने जो किचन है उसमें सब में लगाते हैं, वहाँ के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें बहुत से कंसल्टेंसी भी है कि अगर आप ट्रेंड हैं या आप स्किल्ड हैं, इसमें स्किल्स है आपके पास, तो आप कंसल्टेंसी के रूप में भी कल्टीवेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, इसकी प्रोसेसिंग में, या आप फाइनेंस भी कर सकते हैं, जो आपके छोटे किसान हैं उनको आप हेल्प कर सकते हैं। क्वालिटी एक मेजर एस्पेक्ट होता है, जो भी आयल आता है उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में जा सकते हैं। जहां पर इसको ग्रो करते हैं सॉइल से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी आप टेस्ट करके कितना आपको फर्टिलाइजर देना है, क्या उसमें रिसोर्सेज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसमें भी आप कर सकते हैं। पैकेजिंग और स्टोरिंग के लिए भी आप इसमें कर सकते हैं, और रूरल एरिया से जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है इसको मार्केट तक या सिटी तक पहुंचाना या इंडस्ट्री तक पहुंचाना, इसमें भी आप इसका कर सकते हैं। तो अगर आप देखें ये सारी चीजें डे बाई डे जो डिमांड है एसेंशियल ऑयल की या एसेंशियल ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट की, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लोग सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स है उससे थोड़ा सा अपने को दूर कर रहे हैं। जो ये चेंजेस इस इरा में आ रही है कि वो नेचुरल की तरफ, जो नेचुरल बेस्ड सब्सटेंसेस हैं वो उसकी तरफ पूरा विश्व जाना चाहता है। इसलिए इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मांग बढ़ गई है, और निश्चित रूप से ये मांग को पूरा करने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ की जो इस तरह के व्यवसाय है उनको स्थापित करने में और पूरा करने में काफी हेल्प होंगी। अगर देखें तो ये सारे इसमें अच्छे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो आपकी कम लाभ देने वाली फसलें हैं, या जो आपकी फसलें किसी तरह से
खराब हो जाती हैं, या जैसे आपका नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कुछ असमय वर्षा हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए कि आपकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, कन्वेंशनल क्रॉप है, वो नहीं टॉलरेट कर पाती है, एरोमेटिक क्रॉप वो आसानी से वहां कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप हैं, उसी को सारे किसान ग्रो करने लगते हैं, डाइवर्सिटी नहीं होती है, तो उसका मार्केट वैल्यू गिर जाता है। तो ये भी, इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखें तो मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर वो डाइवर्सिफाई करे, कि उनके स्थान पर चाहे वो इंटरक्रॉपिंग के रूप में या क्रॉप रोटेशन के रूप में अगर आप इन सुगंधित पौधों की खेती को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी फायदा होगा। जो अगर बेनिफिट देखें, जो लाभ है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट से, इससे जो पहला होगा, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर, जो रॉ मटेरियल की है या प्रोडक्ट की है, उसकी डिमांड को हम मीट आउट कर सकते हैं। क्वालिटी एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मोर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा कि गुड ऑप्शन फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, जो आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप है, अभी आगे हम बात करेंगे, बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर क्रॉप है किसी एरियाज में वो हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे, बट अगर वहां उसको आप डाइवर्सिफाई करते हैं विद दी एरोमेटिक क्रॉप, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इसमें रिस्क कम है कंपेरेटिवली, अगर आप देखेंगे जो आपके ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉप है उससे कम रिस्क है, चाहे वो लो ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, ड्रॉट कंडीशन हो, रेड पेंट कंडीशन हो, इन सब में बहुत अच्छा ये परफॉर्म करती है। एक चीज ये भी देखा गया है कि आजकल ज्यादातर जो हमारी एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप आ रहे हैं, या इनमें सब में जो पेस्टिसाइड का यूज है बहुत ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें उसी हिसाब से इंसिडेंस भी ज्यादा है। बट लेकिन अगर देखें जो हमारी मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप है, रिलेटिवली उसमें लो इंसिडेंस है, बहुत कम ही डिजीज एंड पेस्ट का अटैक हो पाता है। और इसमें दूसरा यह है कि इसकी सोइंग और प्लांटेशन टाइम में काफी, मतलब जो एडवर्स है वो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, काफी मतलब फ्लेक्सिबल है जो भी आपकी एरोमेटिक मेडिसिनल क्रॉप है। और इसका आजकल जो एक और चैलेंज आ रहा है किसानों के पास, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल का, ज्यादातर उनकी क्रॉप वो डैमेज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी जो एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप है, वो जो डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल है उनका थ्रेट कम है, कहने का मतलब उनके द्वारा वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको वो खा नहीं पाते हैं, उनका जो स्वाद है या सुपाच्य उतना नहीं होता है। इसमें जो सस्टेनेबिलिटी या एग्रीकल्चर एरिया में बहुत ज्यादा रिस्क है, वहां पर अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो शायद वो फार्मर का रिस्क भी कम होगा, और जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन पोटेंशियल है वो भी इंप्रूव होगा। मोर फार्मिंग ऑप्शन आपके पास आएंगे, जो लिमिटेड क्रॉप चॉइस है शायद वो आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि अभी आप केवल एग्रीकल्चर या फूड क्रॉप आप ग्रो कर रहे थे, वो चॉइस थी, तो आपके पास एक ऑप्शन और आएगा मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप। और इससे बेस्ड जो आपके जो बिजनेसेस हैं, वो एक नया एवेन्यू वो आपके रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोलेगा। और एक तरह से ज्यादातर जो हम एरोमेटिक मेडिसिनल क्रॉप या प्लांट्स को लाते हैं, वो ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया या वाइल्ड सोर्स से आ रहा है। अगर इसको हम ये उगाने लगेंगे तो शायद उसका कंजर्वेशन भी अपने आप होता रहेगा। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, अगर आप देखेंगे कि फार्मर्स जो प्रॉफिट है वो कंपेयर अगर करते हैं हम एग्रीकल्चर क्रॉप से, तो उनको मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट से ज्यादा प्रॉफिट लाभ मिल रहा है। अगर मेंथा की बात करें, मेंथा में जो फार्मर को जो गैप है राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम का, या अभी जो विंटर के क्रॉप के पास, चाहे उनका मस्टर्ड है या वेजिटेबल्स क्रॉप है, पोटैटो है, इसके बाद वो फिर उनका राइस आता है, तो फरवरी या मार्च या कह लें अप्रैल से लेकर के जून का जो महीना है, उसमें वो उनकी फैलो लैंड रहती है, कुछ नहीं ले पाते थे। लेकिन जो मेंथा ग्रो करके फार्मर उससे 50
50 to 60,000 एक हेक्टेयर से वो उस पीरियड में, फ्री टाइम में वो वहां से लाभ ले रहे हैं। ऐसे वाटर लॉक कंडीशन है या स्ट्रीम ड्रॉट कंडीशन की आपकी सॉइल है, जहां पर कोई भी एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल क्रॉप आप नहीं ग्रो कर पाते हैं, वहां पर जो है आप खस ग्रो करके आसानी से 70 से 80,000 रुपए की आमदनी कर सकते हैं 10 से 12 महीनों में। इस तरह से अगर आप देखें, इंटरक्रॉपिंग में जाते हैं या इंटीग्रेट करते हैं इन सब क्रॉप को, तो मैप्स जब आप वहां इंटीग्रेट कर देंगे तो शायद जो आपका लॉस है या रिस्क है वो काफी मिनिमाइज हो जाए। सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबिलिटी आजकल हर क्षेत्र में टिकाऊ खेती की बात करते हैं, और शायद टिकाऊ खेती के लिए जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है या क्रॉप रोटेशन है, शायद उसमें जब तक हम कुछ इस तरह के क्रॉपों का, जो एक तरह से कह लें कि एबायोटिक स्ट्रेस क्रॉप हैं या जो जलवायु परिस्थिति का जिस पर कम प्रभाव पड़ता है, उनके चेंजेस में, उनके परिवर्तन में, या जो कह लें कि आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव कम पड़ता है, ऐसी फसलों को हमारे सस्टेनेबल फार्मिंग में शामिल करना पड़ेगा। तभी शायद हम सस्टेनेबल फार्मिंग को आगे ले जा पाएंगे और इसको अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल अगर आप देखें कि जो पामारोजा कल्टीवेशन है, जो ड्राउट कंडीशन में हम या ड्राउट प्रोन एरिया में मिलेट्स कल्टीवेट करते हैं, और मिलेट्स के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता फार्मर के पास कि हम क्या ग्रो करें। अगर उसमें फार्मर पामारोजा ग्रो करता है तो शायद जो उसका रेजिडुअल मॉइस्चर है या कह ले अवेलेबल मॉइस्चर है उसको यूटिलाइज कर लेंगे और फार्मर को एक एडिशनल इनकम मिलेगी। मैप्स में जो फार्मिंग ऑप्शन है और बिजनेस ऑप्शन वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो खनुजा सर बात करते हैं कि मैक्सन और शुरू से जब वो सीमैप में थे या सीमैप के डायरेक्टर हुए, तो हम सभी को यही कहते थे कि जो भी तकनीक है उसको आप ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाइए, और उनका शायद उनका ही प्रयास है कि आज हम सीमैप की जो तकनीक जो लैब में विकसित हुई या जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया उनको खेतों तक हम ले जा पाए, और वो लगातार हम कर रहे हैं, और ये आज काफी पॉपुलर हो गई है। जो सर कह रहे थे एरोमा मिशन के रूप में या एरोमा बायो विलेज के रूप में, वो हम उसको ले जा रहे हैं। तो इनकी काफी बिजनेस और फार्मिंग ऑप्शन इसमें ज्यादा है। इसी तरह से जो जलवायु परिस्थिति है या सॉइल कंडीशंस है या इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग सीमैप ने या बहुत सी संस्थाओं ने उनको उस क्षेत्र में किसानों के साथ, किसानों के एक रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखा है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, वहां पर वो इस तरह के जो क्रॉप है वो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे इरोडेड सॉइल है, वहां के लिए सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, विटिवर, अश्वगंधा, कैमोमाइल, ये सारी क्रॉप आसानी से लगा सकते हैं जहां पर हमारी कोई एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं ग्रो हो पाती। हिली रीजन है, क्रॉप चॉइस बहुत लिमिटेड है, हम सभी जानते हैं, वहां के लिए सेंटेड जेरेनियम, रोजमेरी, आर्टिमिशिया, थाइम, आर्गेनो, ये क्रॉप वहां से आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। जहां पर स्ट्रेस सॉइल, मॉइस्चर स्ट्रेस है, वहां पर पामारोजा, लेमन ग्रास, बासिल, ये सब कर सकते हैं, तुलसी। सेमी एरिड ट्रॉपिकल कंडीशन में एरोमेटिक ग्रासेस, दवाना, पचौली, ये आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। सिलाइन एल्कलाइन सॉइल है, पामारोजा, लेमन ग्रास, विटिवर, कैमोमाइल ग्रो कर सकते हैं। एरिड रीजन अगर है जहां पर ब्रैकिश ग्राउंड वाटर है, पामारोजा, विटिवर, लेमन ग्रास आसानी से ग्रो किया जा सकता है। एसिड सॉइल में जेरेनियम, विटिवर और ब्राह्मी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जहां पर हैवी मेटल पॉल्यूटेड सॉइल्स है, वहां पर एरोमेटिक ग्रासेस, बासिल, क्लेरिसेज, कैमोमाइल ग्रो कर सकते हैं। ये एसेंशियल ऑयल क्रॉप अगर इस तरह के पॉल्यूटेड सॉइल में आप ग्रो करेंगे तो आपका सॉइल भी डिकंटामिनेट होगा, जो कि आने वाले समय में वो एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए सुटेबल होंगी, क्योंकि जो वोलाटाइल कंपाउंड है उसमें इस तरह के कंटामिनेंट्स नहीं जाएंगे, तो ये कहें कि आपके फूड चेन में नहीं शामिल होगा, तो उस सॉइल को सुधारने में भी इसका काफी इन क्रॉप का काफी अच्छा रोल है। एरिगेटेड कंडीशन, जहां पर बहुत से इफ्लुएंट आते हैं या मॉइस्चर है, वहां पे एरोमेटिक ग्रासेस
तुलसी, जेरेनियम, मिंट, ये सारे कर सकते हैं। न्यूली रिक्लेम्ड सॉइल है, अगर हम सॉइल को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो तुलसी है, साल्विया, अश्वगंधा, कैमोमाइल, पामारोजा, लेमन ग्रास, ऐसे ये सारी क्रॉप हैं जिनको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और CSIR CMAP ने इसमें समय समय पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं रूरल एरिया के लिए। जैसे सर कह रहे थे, जेरेनियम बायोविलेज उत्तराखंड में सर ने शुरू कराया था, और आज अगर आप देखें जेरेनियम जो है पूरे भारत में ग्रो होने लगा। पचौली विलेज बायोविलेज कर्नाटका से शुरू हुआ, आज ये काफी क्षेत्रों में फैल गया है, और सीमैप की जो वैरायटी है वो कमर्शियल स्केल पे फार्मर ने अडॉप्ट किया है, ग्रो कर रहे हैं। लेमन ग्रास बायोविलेज आंध्र प्रदेश है, खस बायोविलेज उत्तर प्रदेश, एरोमा बायोविलेज उत्तर प्रदेश, एरोमा मिशन इंडिया, CSIR एरोमा मिशन जो इंडिया लेवल पे चल रहा है, या इसके अंतर्गत जो सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर इंडिया में डेवलप हो रहा है, इन सब के द्वारा जो एरोमेटिक क्रॉप कल्टीवेशन का जो बात हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो रूरल एरियाज में व्यवसाय के लिए एक एवेन्यू जनरेट कर रही हैं या खोल रही हैं, जहां से सोच सकते। जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि अगर आप देखें, जब जेरेनियम बायोविलेज, अगर उत्तराखंड का एक आप देखें, कुछ एग्जांपल्स मैं बायोविलेज के द्वारा दे रहा हूं कि कैसे जो हमारे छोटे किसान हैं या दूरस्थ किसान हैं, वो कैसे इस एरोमा से, जेरेनियम बायोविलेज से जुड़ करके उन्होंने फायदा लिया। जो उनकी क्रॉप थी, अगर उस समय देखें, राई, स्वीट, बार्ली, मेज, मंडुआ, लेंटिल, रागी ग्रो करते थे, और उनको 1 हेक्टेयर से मैक्सिमम 21,000 रुपए वो अर्न करते थे। लेकिन जब जेरेनियम बायोविलेज स्टार्ट हुआ, जेरेनियम इंट्रोड्यूस हुआ, तो उनकी जो वैल्यू थी, जो उनका आमदनी थी या इनकम कह दें, वो लगभग 80-85,000 के आसपास हो गई। वहां पर सीमैप ने इन्हीं क्रॉप के साथ जब इंटीग्रेट कराया किसानों को कि आप कोई क्रॉप अपनी ट्रेडिशनल या जो आपकी क्रॉप है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ आप ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने राइस जेरेनियम या मेज जेरेनियम, क्योंकि पहले वो सिंगल क्रॉप एक ग्रो करते थे, बाकी उनकी लैंड फेल हो रहती थी, खाली पड़ी रहती थी, जमीन पर कोई फसल नहीं होती। जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, उसके द्वारा आप देखें राइस, मेज, मडुआ, सोयाबीन, तोरिया, पी, लेंटिल, इन सब के साथ जब इंट्रोड्यूस किया, तो उनकी जो नेट प्रॉफिट थी वो मोर देन 50,000 और 68,000, मतलब शुद्ध लाभ उनका जो है वो काफी बढ़ गया, जहां उनको 20,000 और 21,000 रुपए बहुत मुश्किल से मिलते। तो ये जेरेनियम बायोविलेज का जो प्रभाव रहा वो ये रहा कि वहां के किसानों का जो इनकम था वो काफी बढ़ गया। इसी तरह से CSIR CMAP ने एरोमा मिशन के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, जैसे सर का एक नारा था, रीच टू अनरीच्ड, जहां कोई न पहुंचे वहां सीमैप पहुंचा, और सीमैप ने पहुंच करके ऐसे क्षेत्रों में, ये ट्राइबल कम्युनिटीज है साउथ की, और हमारे वहाँ के वैज्ञानिकों ने जो है इसको ले जा करके वहाँ किसानों को, जो कि वहाँ पे ज्यादातर एलिफेंट कॉरिडोर है या बहुत से ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं, कोई भी फूड क्रॉप या एग्रीकल्चर क्रॉप वो आसानी से नहीं उगा सकते थे, वहाँ पर लेमन ग्रास की खेती कराई गई, और सीमैप के द्वारा जो इम्प्रूव डिस्टिलेशन यूनिट है उनको दिया गया। आज वो किसान हैप्पी हैं, इतने खुश हैं, और वो अपने तेल को वहां से इंडस्ट्री, ये अल्ट्रा इंटरनेशनल एक इंडस्ट्री है जो उनके तेलों को वो बाय कर ले रही, खरीद ले रही है, और उसके अलावा उनको भी प्रोत्साहित कर रही है सीमैप के साथ में करके। ऐसे बहुत सी क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां पर सीमैप ने पहुंच करके वहां के किसानों को ये बताया कि इसको आप इस तरह से इसकी खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसी तरह अगर आप खस देखें, खस में कई तरह के व्यवसाय की संभावना है। एक तो आपके जो क्षेत्र है, ड्रॉट एरिया है, वाटर स्ट्रीम डॉट एरियाज हैं, या आपके वाटर लॉक कंडीशंस एरियाज हैं, जहां पर आप कोई फसल नहीं ले पाते हैं, चाहे वो रिवर बैंक है, गंगा रिवर बैंक के आसपास का एरिया हो जो बाढ़ग्रस्त होता है, या ऐसे बहुत से क्षेत्र जहां पर आपकी फूड क्रॉप या आप कह लें ग्रेन क्रॉप या आपका वेजिटेबल, पल्सेज, आयल, ये सब नहीं हो सकती, वहां पर खस उगा लें।
खस की जड़ से तेल निकालने। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडीक्राफ्ट को एक उद्योग के रूप में स्थापित करने में बहुत ही अच्छा ये अवसर प्रदान करता है खस। साउथ इंडिया में तमिलनाडु के पास कुडलूर एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये किसान, कुछ किसानों का जो समूह है, वो कई किसान इसको व्यवसाय के रूप में व्यवसाय के रूप में इसको अपनाया है। और अगर पूरे कुडलूर डिस्ट्रिक्ट की आप इनकम देखें इस विटिवर से तो मोर देन 50 करोड़ के आसपास है एनुअली, जो कि वो आयल के द्वारा और ये हैंडीक्राफ्ट बना करके ये बाहर के देशों में भी भेजा जा रहा है। तो शायद जो सर कनुजा सर कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों से कैसे उस उत्पाद को वहीं के द्वारा, लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बना करके इसको बाहर ले जाए, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एरोमा मिशन में इसको सीमैप ने जो है करके दिखाया है। जो उसका ऊपर का भाग है वो भी उसको ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के सीजन में जो गर्मी से राहत के लिए उससे बहुत सी चीजें और भी बनाई जा रही हैं, जैसे छप्पर है या चटाई है, इस तरह की चीजें। तो ये भी एक व्यवसाय का रूप में कर सकते हैं। 1 केजी अगर आपका जड़ है तो उससे लगभग 3 से 4 फीट के आसपास का माला बनता है। जो गारलैंड है उसको एक खस का गारलैंड बनाते हैं उधर दक्षिणी भारत के लोग, जो किसान, वो 4 फीट के गारलैंड की कीमत, जो वो जड़ की कीमत थी 80 रुपए 60 रुपए, वो बढ़ करके लगभग आपका 300-400 रुपए हो जाता है। तो इस तरह से देखें, ऐसे एरोमा मिशन के अंतर्गत जो हमारा विदर्भ का रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन है, जहां पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट की जो प्रॉफिट थी, इनकम थी, वो बहुत ही कम थी, क्योंकि वो एक्सट्रीम ड्रॉप कंडीशन है। वहाँ रेनी सीजन के अलावा कोई क्रॉप नहीं होती थी। जो पैडी, व्हीट, ज्वार, बाजरा, फिंगर मिलेट्स या तूर, अरहर के द्वारा वो जो इनकम होती थी, वो एवरेज इनकम उनकी लेस देन 50,000 पर एकड़ थी, वो ईयरली थी। जब वहां पर सीमैप ने एरोमा मिशन के अंतर्गत एरोमेटिक जो हमारी ग्रासेस थी, लेमन ग्रास, पामारोजो, सिट्रोनेला और वेटिवर को इंट्रोड्यूस किया, तो आप देखिए कि समर सीजन में जहां पर बिल्कुल ड्राउट कंडीशन होती थी, कोई ग्रीनरी नहीं दिखती थी, इस तरह से आप ये फार्मर फील्ड हैं जो कि आपको इस समय हरे भरे पूरे दिख रहे हैं। अगर आप कुछ फील्ड ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंगो प्लांटेशन भी किसान ने किया और जो है कोकोनट भी प्लांटेशन किया है, क्योंकि वो कह रहा था कि पहले कहते थे कि जब हम पहले केवल करते थे तो इसको जानवर या डैमेज कर देते थे या ये सर्वाइव नहीं करता था, बट जब हम लेमन ग्रास के साथ इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे प्लांट भी चल गए और उनकी जो इनकम थी, वो आप देखिए कि उनकी इनकम जो है वो लेमन ग्रास से 76,000 के आसपास हो गई, पामारोजा 52,000, सिट्रोनेला 61,000। ये ईयरली उनकी इनकम जो 30,000 40,000 था वो बढ़ करके वो 80 के आसपास पहुंचा। इसी तरह एरोमा मिशन में CSIR सीमैप ने एरोमा क्लस्टर डेवलप किया और इस एरोमा क्लस्टर के द्वारा कैसे किसान की इनकम बढ़ाई जाए, वो बाराबंकी का एक विलेज है बब्बनपुरवा के नाम से, जहां पर सीमैप ने जहां के किसानों का 2 तरह के ग्रुप थे किसान के। एक ग्रुप था जो राइस, पोटैटो और मेंथाल मिंट ग्रो करता था, और एक ग्रुप था जो कि वो राइस मस्टर्ड और मेंथाल मिंट ग्रो कर। लेकिन दोनों की जो इनकम थी या दोनों की जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी नहीं थी। सीमैप ने जब वहां पर इंटरवीन किया, सीमैप के जो तकनीक है उसके द्वारा जब उन्होंने शुरू किया, चाहे वो रिच प्लांटेशन सीमैप के हो, चाहे सीमैप की उन्नतशील प्रजातियां हो या सीमैप द्वारा और बहुत से एग्रो प्रैक्टिसेज हो, उसको जब उन्होंने अपनाया तो उनकी जो इनकम थी वो उनकी इनकम जहां उनको 1,51,000 रुपए लगभग मिलता था, 1.5 लाख के आसपास मिलता था, 1.5 लाख के आसपास, वो बढ़ करके 2.64 हो गई इस क्रॉपिंग सिस्टम का। तो कहने का मतलब इस तरह के जो इंटरवेंशंस हैं या इस तरह का जो है वो अगर अपनाएंगे किसान, निश्चित रूप से उनको फायदा हो। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल मेंथाल मिंट पे, जब से सिंथेटिक मेंथाल मार्केट में आया है, तो जो हमारे किसानों की खेत है उसमें वो मेंथा की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेंथा जो प्रति केजी आयल उत्पादन है उसकी लागत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है।
तो सीमैप ने एक खरीफ मिड टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो कि एक क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजी है, और जो वाटर रिक्वायरमेंट है इसके द्वारा 30 to 40% कम हो गई, जो कि हमारी समर क्रॉप जब फरवरी टू जून वाली क्रॉप थी उससे। और जो कास्ट बेनिफिट रेशियो था वो काफी इंप्रूव हुआ। अगर आप देखें टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन में भी 35 to 40% की कमी आई, जबकि यील्ड पोटेंशियल हमारी जो है वो मेन क्रॉप जो समर क्रॉप के रूप में ग्रो होती थी उससे बढ़ी है। तो कहने का मतलब एक अल्टरनेट क्रॉपिंग सीजन के द्वारा जो मेंथाल मिंट की लागत को कम किया गया, और जहां पर रेनफेड कंडीशन में बहुत क्रॉप चॉइस नहीं थी फार्मर के पास, वहां पर उनको एक हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में या ज्यादा आमदनी उससे कमा सकते हैं, मेंथा की खेती कर सकते हैं। ऐसे अगर आप देखें प्रिसीजन फार्मिंग, जो AI बेस्ड जो प्रिसीजन है एग्रीकल्चर है, उसके द्वारा उसका भी सीमैप ने ग्रामीण क्षेत्रों में काफी किया, और उसको एक बिजनेस के रूप में, जो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि मेंथाल मिंट या एरोमेटिक क्रॉप में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन, उसमें बहुत मुश्किल होती है किसानों को, चाहे उनको फर्टिलाइजर डालना हो या उनको पेस्ट या डिजीज कंट्रोल करना हो, इन सब में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि इसके अंदर घुसना काफी इंसेक्ट या स्नैक्स ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि समर सीजन क्रॉप है तो इस तरह की कीड़े या कह लें कि सांप बहुत होते थे। तो अगर हम उसको इसके द्वारा स्प्रे करते हैं ड्रोन के द्वारा, तो उसमें घुसना नहीं पड़ता है, उसके अंदर नहीं जाना पड़ता, और जहां पर जरूरत होती है जिसकी जितनी मात्रा हम वहां पर उससे कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इससे क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है अब गांवों तक इसको ले जा करके कैसे इसको उपयोगी बना सकते हैं। क्रॉप हेल्थ आप मॉनिटर कर सकते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज था वो मोर देन 70% रिड्यूस हो गया। वाटर शेविंग भी कर रहे हैं। अगर आप देखें नीचे टेबल में दिया गया है कि अगर 1 एकड़ में आप कोई चीज स्प्रे कर रहे हैं, तो वो अगर ड्रोन के थ्रू करते हैं तो वो आप 5 to 7 मिनट में स्प्रे कर लेते हैं। अगर आप मैनुअली करते हैं तो वो 5 to 6 आवर लगता है। वाटर रिक्वायरमेंट भी काफी कम हो गई। अगर आप ड्रोन के थ्रू आप स्प्रे कर रहे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट 10 लीटर के आसपास आता है, लेकिन अगर यही आप मैनुअली कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 150 लीटर वाटर की जरूरत होती है। एक्सपेंडिचर कास्ट भी बहुत कम आता है, लगभग 200 और 250 के आसपास, और इसको गवर्नमेंट भी काफी आजकल ड्रोन दीदी के रूप में रूरल क्षेत्रों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। सीमैप भी इसमें काम कर रहा है, और सीमैप के एक वैज्ञानिक ने इसको किसानों तक ले गया है, और किसानों के यहाँ लास्ट सीजन में लगभग सीमैप ने एक प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 300 एकड़ के क्षेत्रों में ड्रोन के द्वारा ही जो भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया या जो भी प्रैक्टिसेस हमने किया वो सारा ड्रोन के माध्यम से किया। तो इस तरह से जो अगर ड्रोन के द्वारा अगर आप कोई किसान या इसको व्यवसाय के रूप में लेता है, तो अगर वो ड्रोन से स्प्रे या सारी चीजें करता है तो पर डे लगभग उसको 800 से 1000 रुपए की नेट प्रॉफिट, या कह लें कि 80 से 10,000 रुपए का फायदा उसको होता है। क्योंकि लगभग जहां आप मैनुअली 5 एकड़ 10 एकड़ करते थे, इससे आप 50 एकड़ तक कर सकते। तो ये भी एक व्यवसाय के रूप में आप इसको अपना सकते। ऐसे सीमैप ऐसे क्षेत्रों में जहां पर एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं ग्रो हो सकती थी, इतना हाई ड्यू टू दी हाई सैलिनिटी, कह लें सैलिनिटी की वजह से, अल्कलिनिटी की वजह से वहां कोई क्रॉप नहीं ग्रो होती थी। सुल्तानपुर, रायबरेली या अमेठी या ऐसे प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में या कोस्टल रीजन में जहां पर कोई क्रॉप नहीं ग्रो, एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो हो सकती थी, वहां पर अगर आप देखें ये उस क्षेत्र की फोटोग्राफ है जहां पर ये फसलें अच्छे से लहलहा रही हैं और ये ग्रो हो रही हैं, और जो प्रॉफिट है इस तरह के क्षेत्रों से, इस तरह के फील्ड से, वो लगभग 40,000 से लेकर के और 1 लाख रुपए तक किसानों को प्राप्त हो रहा। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्र जो किसी भी सैलिनिटी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से
हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं ग्रो हो सकती है, वहां पर आसानी से ग्रो सकती है। अब जैसे पामारोजा है, लेमन ग्रास है, विटिवर है, ये सब अगर किसी भी मिट्टी की पीएच मान 8-9 के आसपास है, वहां पर भी हमारी कुछ प्रजातियां हैं, PRC1 या खस की आप ले लें KS1 समृद्धि, लेमन ग्रास की कृष्णा, तुलसी की सौम्या, मेंथा की कोसी, ये सारी प्रजातियां आप आसानी से उन क्षेत्रों में ग्रो करके ज्यादा से ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जब 90 के दशक में 80 के दशक में जब मेंथा कल्टीवेशन इस नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो उसका प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसके लिए किसानों को जो है प्रोसेसिंग सभी किसानों के लिए लगाना मुश्किल नहीं था। तो ये भी एक कुछ किसान गांव के उस 90 के दशक में कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने डिस्टिलेशन यूनिट को व्यवसाय के रूप में अपनाया, और छोटे छोटे वो 1-1 टन के यूनिट लगा के, जो छोटे छोटे किसान थे जो यूनिट नहीं लगा सकते थे, उनके तेलों को निकाल करके और बल्क में इकट्ठा करके और इंडस्ट्री को सप्लाई करने लगे। तो सीमैप ने इसमें काफी प्रगति की है, और सीमैप ने काफी डिजाइन किया है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो बाराबंकी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कि इस टंकी को बनाने का काम कर रहे हैं, और उससे काफी आमदनियों प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से डिस्टिलेशन या प्रोसेसिंग यूनिट को भी एक व्यवसाय के रूप में इसको अपना सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन जो भी एरोमेटिक क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए एक अच्छी डिजाइन वाली यूनिट की जरूरत आपको पड़ती है। इसी तरह से जो डिस्टिलेशन वेस्ट है वो इन्वायरमेंट में कोई ऐसा प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए सीमैप ने काफी प्रयास किया। और क्योंकि इसको जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो इसके जो टिश्यू है वो लाइसिस हो जाते हैं, कहने मतलब वो काफी रप्चर हो जाते हैं और एक तरह से स्लाइस भी हो जाते हैं। तो उसमें क्योंकि आप सभी आजकल जानते हैं कि मशरूम कल्टीवेशन जो एक न्यूट्रिशन का काफी अच्छा सोर्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी है, विटामिन डी है, सारी चीजें इसमें मौजूद है। और जब इस डिस्टिलेशन बेस पे करते हैं तो इसमें बहुत कम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। और आप देखिए कि अगर 1 कुंटल आपके पास डिस्टिलेशन बेस्ड है तो अगर आप मशरूम प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो उसकी लागत जो आती है वो लगभग 2,000 रुपए आती है, और उससे जो आपकी इनकम हुई वो लगभग आपको 9,000 मिलेगा। अगर आपकी लागत हटा दें तो आपको लगभग 7,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और जो प्रोडक्शन है 1 कुंटल अगर सबस्ट्रेट है, वेस्ट है, तो उससे लगभग आप एक सीजन में 30 से 40 केजी आप मशरूम प्रोडक्शन करते हैं। मशरूम प्रोडक्शन के बाद ये जो वेस्ट है इसको फिर आप अगर चाहे वर्मी कंपोस्ट बना लें, या इसको ऐसे ही जनरल भी कंपोस्ट कर सकते हैं अगर वर्मी नहीं है। अगर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें देखिए जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो आप इसको जो डिस्टिलेशन वेस्ट है इसको निकाल करके आप मशरूम उगा सकते हैं। मशरूम उगाने के बाद इसको आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा, आपके खेतों में जो रासायनिक फर्टिलाइजर है उसकी उपयोग, उसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं। ये आप देखिए, अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जो अगर आपके पास एक पिट है 6 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 5 मीटर, तो इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर कास्ट आती है वो 2,000 रुपए के आसपास आएगी। और इसमें लगभग 10 कुंटल 1 टन के आसपास जो आपका डिस्टिलेशन वेस्ट है या एग्रीकल्चर वेस्ट भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो उसका लोड आता है। और उसमें 1 टन या 10 कुंटल जो आपने वेस्ट डाला उससे लगभग आपको 2 कुंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट आपको 80 से 90 दिन में आपको एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट प्राप्त कर सकते। इसको आप मार्केट में भी आप सेल कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे किसान हैं जो कीचुई से लेकर के और इस वर्मी कंपोस्ट को ला करके ग्रामीण क्षेत्रों में बना करके और शहरी क्षेत्रों में इसको बिक्री कर रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनके जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका लोड काफी, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है बहुत अच्छी। अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन 1.04 से 1.96% तक, फास्फोरस 0.75 से 1% तक, पोटेशियम 0.8 से 0.91%, इसी तरह जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, ये भी काफी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको भी काफी प्रचुर मात्रा।
एक और बहुत अच्छा है जो कि हम उसको एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना सकते हैं। जो वेस्ट आ रहा है, जो डिस्टिलेशन वेस्ट आता है, अगर हम इसको वर्मी कंपोस्ट नहीं बना पा रहे हैं, आप आजकल देखते हैं शादी समारोह गांव में होता है, कहीं भी होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम या बहुत से ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं जो आपके पॉलीथीन वेस्ट या इस तरह के जो प्लेटें आ रही हैं, तो अगर इन वेस्ट से आप इसको कटलरी बनाते हैं, देखिए ये वेस्ट डिस्टिलेशन वेस्ट है, इसमें कुछ भी सिंथेटिक यूज करने की जरूरत नहीं होती। ये सीमैप के पास टेक्नोलॉजी है, सीमैप में लगी है। कोई भी अगर आप सभी देखना चाहते हैं या इसको जानना चाहते हैं तो सीमैप से संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी लगाना चाहता है तो ये 7 से 8 लाख रुपए में एक सेटअप तैयार हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। उससे आप एक अच्छा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं कप प्लेट का, जो कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है। ये कप प्लेट जो भी आप खाने की चीजें हैं, ये कटलरी यूज करने के बाद आसानी से ये आप फिर अपने उसी जो डिकम्पोजर पिट्स है उसमें आप ऐड कर देंगे, डाल देंगे, तो ये आपको अच्छी खाद के रूप में फिर ये खेतों में मिल जाए। कहने का मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है, आप ये इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इससे लाभ लें, रिसाइकिल। एक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी व्यवसाय शुरू किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कल्टीवेशन में जाएं, आपके पास आप लैंडलॉर्ड हो या आपके पास बहुत ज्यादा खेत हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी किसान या जो लेबरर कम्युनिटी है जिनके पास लैंड नहीं है, खेती योग्य भूमि नहीं है, तो वो आजकल एपी कल्चर को भी अपना सकते हैं और ये बहुत ही लाभकारी है। और अगर इसमें देखेंगे कि लगभग अगर 25 बी बॉक्स आप रखते हैं तो उसका जो 50 बी बॉक्स का अगर आप एक बनाते हैं किसी एरिया में, इस समय जैसे अब आने वाले सीजन में सरसों या बहुत से ऐसी क्रॉप आ रही है जिसमें खूब फ्लावर आते हैं और आप आसानी से किसी भी एरिया में लगा सकते हैं, तो अगर 50 बी बॉक्सेस डबल केस का लगाते हैं तो उसमें लगभग 3.4 लाख का आपका खर्चा आता है। लेकिन अगर आप देखें उसमें जो इनकम हो रही है वो 4.6 लाख के आसपास आपको इनकम होती है। तो पहली ईयर जो बॉक्स का कॉस्ट है आएगा, लेकिन सेकंड ईयर में इसमें बहुत सी कॉस्ट आपके कम हो जाएंगे। तो पहली साल ही देखें तो अब आपको लगभग एक बार में, वैसे इसको सीजन में, विंटर सीजन में अगर अभी आप लगाते हैं तो कम से कम हर 70 डेज पे आप इसका हनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और सीजन में 2-3 बार करेंगे तो शायद ये आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप मधुमक्खी पालन के द्वारा भी, जिनके पास जमीनें नहीं भी हैं, वो भी किसी भी क्षेत्र में बाग में रख के या आसपास के क्षेत्रों में घरों के आसपास रख करके और ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये भी एक व्यवसाय का अच्छा सोर्स है, माध्यम है। इसके अलावा आजकल ये जो हनी आप जब निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसका जो आता है बीज का जो वैक्स होता है वो बहुत उपयोगी है। और आजकल कैंडल, इससे कैंडल बनाई जा रही है। अगर पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड मार्केट भी वैक्स कैंडल का देखें तो उसका जो ग्रोथ रेट है, जो अगर काफी 2000 अगर आगे देखें जिस रेशियो में इसका ग्रोथ रेट हो रहा है, वो प्रेजेंट टाइम में लगभग $13 बिलियन का है। वो शायद 31 तक लगभग 21 बिलियन के आसपास हो जाए। अगर मार्केट, टोटल मार्केट देखें जो वैक्स बेस्ड कैंडल मार्केट आ रही है, तो उसमें अगर आप देखेंगे जो वी वैक्स कैंडल की मार्केट है वो काफी ज्यादा है, बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि ये इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इससे जो है सीमैप ने अभी हाल में हमारे जो इस समय डॉक्टर प्रबोध त्रिवेदी सर हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल फिक्की समिट आयोजित की, जो कि उन सभी को किसानों के ले गए और जो ग्रामीण महिलाएं हैं जहां पर ये हनी प्रोडक्शन हो रहा है, वहां की महिलाओं ने अपने हाथों से अभी दीपावली के पहले उन्होंने ये कैंडल्स बनाए और उस कैंडल से उन्होंने लगभग आप समझ लीजिए कि 50 to 30 डेज में उन्होंने मोर देन 50 to 60,000 का इनकम जनरेट किया। एक तकनीक उन्होंने सीखी, घरों में अपने खाली समय में जो हमारी ग्रामीण महिलाएं वो बैठ करके ये वी वैक्स कैंडल बनाए। अगर आप देखें जो वी वैक्स कैंडल की जो कॉस्ट आती है वो 250 ग्राम की अगर कैंडल है और मार्केट वैल्यू अगर 30 to 50% उसकी सेलिंग प्राइस रखते हैं तो वो कितनी कॉस्टली आती है। ये
इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज है आप सभी देख सकते हैं, नेचुरल है। इसमें क्योंकि ये वेस्ट है, इसको हम फेंक देते हैं, जब भी हनी निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको फेंक देते हैं। अगर इसका आप उपयोग करें तो निश्चित रूप से इसमें आप एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और ये वैल्यू एडिशन शायद वो आपका जो हनी जितना शहद से आपको लाभ हो रहा है उससे ज्यादा फायदा आप और एक व्यवसाय के रूप में इसको आप आसानी से कर सकते। इसी तरह से जो बहुत से ऐसे किसान हैं जो गुलाब लगा रहे हैं या बहुत से ऐसे उनके आसपास मंदिर हैं, फूल है, तो ये तो हमारे एके सिंह साहब जो सीमैप में शुरू किया था इसको, जो फूलों से अगरबत्ती आज वो पूरे देश में जो हमारी कई CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन हो या अरोमा मिशन हो, इसके अंतर्गत पूरे देश में इसकी महक गांव तक पहुंच गई है और छोटे छोटे मंदिरों से भी ये फूल कलेक्ट करके वहां की ग्रामीण महिलाएं बना रही हैं। दूसरा, रोज पेटल से सीमैप ने एक न्यूट्रीफाइल प्रोडक्ट भी बनाया है जो कि स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें रोज पेटल के अलावा और बहुत से ऐसे और इसमें औषधीय चीजें उपयोग की गई हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक। इसके अलावा क्योंकि रोज भी ग्रो करते हैं, अगर रोज उगाते हैं तो रोज वाटर के रूप में अभी सीमैप ने कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला ग्रुप बनाया जिन महिलाओं ने, ये लगभग 3 महिलाओं ने कुछ दिनों के अंतर में उन्होंने रोज वाटर बना करके जो सीमैप की सीमॉस्का जेस्टेशन यूनिट है, बहुत कम लागत में ये यूनिट आती है। इससे जो किसानों ने देखिए वो बहुत कम समय में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इनकम उन्होंने किया है। तो ये भी हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए ये आमदनी का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, एक व्यवसाय के रूप में भी इसको अपना सकते हैं। तो चाहे फूलों से अगरबत्ती धूप पत्ते बनाने की बात हो या रोज पेटल से आप गुलकंद बना रहे हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आप इसको ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखें जो ये सारे प्रोडक्ट हैं फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन से लेकर के या कल्टीवेशन से लेकर के जो भी रॉ मटेरियल वो आ रही है उसका जो चैनल होता है स्पेशली मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का, उसमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स कल्टीवेटर मतलब जो कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है वो कल्टीवेट करेगा, जो कोई एक कलेक्ट करता है, फिर लोकल कलेक्टर्स या विलेज लेवल पे होते हैं जो किसानों से इकट्ठा किए वो विलेज लेवल पे आया, फिर ये इस जो लोकल ट्रेडर है जो छोटे जो गांव के आसपास के मार्केट में होते हैं वो लोकल ट्रेडर होते हैं, वो किसानों से या जो कलेक्टर है उससे लेकर के जो सबका इकट्ठा करता है। फिर एक बीच में मिडिल मैन ट्रेडर होता है जो कि उनसे लेकर के फिर ये होल सेलर को जो आपका अर्बन एरिया में कहीं बड़ी सिटियों में बैठा है उसको सप्लाई करता है, और वो होल सेलर फिर वो इंडस्ट्रीज को आती है और इंडस्ट्रीज इसमें जो प्रोडक्ट वो सारा बना करके फिर वो बैक टू दी सोसाइटी वो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये जो भी एरोमेटिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं इस तरह से उसका रॉ मटेरियल से लेकर के वो वैल्यू एडिशन तक आते हैं। ऐसे बहुत सी गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था है जो कि ये उनकी वेरियस बहुत सी स्कीमें हैं जो कि ये रूरल या विलेज एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रही हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल स्कीम सीमैप की जैसे अरोमा मिशन है, बहुत सी स्कीमें हैं जो कि कर रही हैं। ऐसे कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, या राजीव गांधी उद्यम मित्र योजना है जिसके द्वारा एक छोटे जो गांव के किसान हैं उनको इससे जुड़ सकते हैं। जो प्रोविजन फॉर अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज के लिए ये भी एक संस्था है जो कि किसानों को या छोटे उद्यमियों को हेल्प करती है। खादी किसी जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, इस तरह के ये सारी जो है बहुत सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जिनसे जुड़ करके हमारे जो किसान भाई हैं या जो छोटे उद्यमी हैं वो अपने उद्यम को या अपने उद्यम को एक उद्योग का दर्जा दे सकते हैं और वो अपनी आमदनी या अपने क्षेत्र का अपने गांव का विकास कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सीमैप से जो भी जानकारी आप लोगों को कभी भी चाहिए वो सीमैप की साइट से आप आके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर वर्मा जी। और साथियों आपने सुना डॉक्टर वर्मा जी को, और उन्होंने अपने आज के विशेष व्याख्यान में हमें बताया और बहुत विस्तार से बताया
उदाहरणों के साथ में बताया कि किस प्रकार से ये सुगंधीय पौधे और उन पर आधारित जो उत्पाद हैं उनके आधार पर ग्रामीण उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं। और ये केवल चर्चा में ही नहीं है, केवल व्याख्यान में ही नहीं है, बल्कि 6 दशक से भी अधिक समय में जो सीमैप यानी केंद्रीय औषधि सघन पौध संस्थान की शोध यात्रा और विकास यात्रा रही है, और जिसमें तमाम और पूर्व निदेशकों और वर्तमान निदेशक सभी का सराहनीय योगदान रहा है, सभी वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, सभी प्रशंसा के पात्र हैं। इसके द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है साथियों। जो डॉक्टर वर्मा ने ये भी बताया कि किस प्रकार से विभिन्न भूमियों के लिए, जलवायु के लिए पौधे हैं और नए आयाम भी खोजे जा रहे हैं, नए उद्यमिता के आयाम परिलक्षित हो रहे हैं। मैं अपने फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर खनुजा जी से कहूँगा कि वो अपने रिमार्क्स और अपनी टिप्पणी इस संदर्भ में थी। डॉक्टर खनुजा प्लीज। थैंक यू डॉक्टर सिंह। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो लोग उपस्थित हैं उनमें डायरेक्टर ऑफ NBRI डॉक्टर अजीत शासनी भी बैठे हुए हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं डॉक्टर शासनी को आमंत्रित करता हूँ, अगर, क्योंकि वो भी अरोमा मिशन से जुड़े रहे हैं और काफ़ी काम किया है और जो फ्लोरिकल्चर मिशन है उससे भी जुड़े हैं, तो कुछ इसमें और बात बताना चाहें तो। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार sir. Already he has done a good job, Rajesh Chitburma. He has given a detailed analysis of everything with economics. Everything is there. So beyond that, I have nothing to say. So he is in the job right now. He is in the field. So he knows the subject much more better. Earlier I was working on that in the field. Now the field has changed too much. So he knows better than me. I can say that. And whatever he has given, all the data, those are relevant, and he has told all the aspects of medicinal and aromatic plants, as well as beekeeping, then going for the extraction of going for the agarbatti, what Sar has Ekesing has started, and how different waste products can be converted into wealth. So from the medicinal and aromatic plants, though these are cash crop, still then the waste from the cash crop can be also converted to the wealth. So I congratulate him. He has done a nice job. And thank you, Rajesh. And thanks, sir, for asking me to tell something. Namaskar, sir. नमस्कार। Thank you, Ajit. Thank you, Rajesh, for a wonderful talk that you gave. This talk gives a comprehensive view of end-to-end possibilities when we are working with aromatic plants and also medicinal plants to some extent, although we have more examples in aromatic plants for entrepreneurship at village level, reason being that medicinal plants go into drug and aromatic plants go into the common usage, home usage, personal usage products, and therefore more opportunities exist with less of the regulatory issues that might have to be solved. And that is where villages find sometimes a bit of difficulty unless and until there is a linking chain. So Dr. Verma, I must congratulate you कि आपने जितना बताया आज सघन पौधों के बारे में और उससे उत्पन्न होने वाले व्यवसाय के आयाम, वो मैं समझता हूँ कि सभी जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस टॉक को, वो लाभान्वित होंगे। एज ए साइंटिस्ट मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि जितना आपने बताया उससे उत्साह और उमंग तो आएगा ही, लेकिन जिज्ञासा भी होगी। और वो जिज्ञासा ऐसी है कि आज हम एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रहे हैं, और वो युग है एक प्रतिस्पर्धा का, ए कंपटीशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ नॉलेज डोमेन्स। वन इज ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड अदर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने बात भी करी थी AI की, बट वो बात ड्रोन तक सीमित रह गई। मैंने सीमैप की द्वारा बनाई हुई
कुछ यूट्यूब्स भी, जो यूट्यूब चैनल है आपकी, वो भी देखी है। आपकी वेबसाइट पे जितने संभव आयाम नज़र आते हैं या जो जिस तरीके से लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं वो भी देखा है। पर आज जिस तरफ समाज बढ़ गया है, और मैं कहूँगा कि जो किसानों के या ग्रामीणों के बच्चे हैं वो भी अब पढ़ लिख रहे हैं, और वो कंप्यूटर का यूज़ करने में, उसका प्रयोग करने में हिचकिचाते नहीं हैं। और आज तो कंप्यूटर क्या, जो मोबाइल है वही कंप्यूटर बन चुका है। और उस पर लोग ये चाहते हैं कि इंस्टेंट उनको कुछ मिले। वो नहीं चाहते कि वो डॉक्टर खनूजा को ढूंढें या डॉक्टर वर्मा को ढूंढें। उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता। उनको तो अगर गुलाब है तो गुलाब के प्रश्न है और उसका उत्तर चाहिए। वो कौन दे रहा है वो तो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये प्रमाणित हो कि ये सीमैप द्वारा दिया गया उत्तर है। तो अब जब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे इतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। उसमें बेसिकली डेटा बेसिस हैं जो हम यूज़ करते हैं, और उन डेटा बेसिस के आधार पर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि कब कोई पेस्टिसाइड या कोई फर्टिलाइज़र या कोई आ, आ, सिंचाई करनी है, कुछ भी करना है, तो उसमें किसान की मदद हो जाती है। और उसके साथ साथ ड्रोन ही स्प्रे भी कर सकता है, वो उसका लाभ है। लेकिन आपने देखा है कि हम कहते हैं आजकल, एलेक्सा म्यूजिक ऑन कर दो, एलेक्सा मेरी लाइट्स बंद कर दो। एलेक्सा, ये एरोमा क्रॉप क्या होती है, तो एलेक्सा उसका जवाब दे देती है उसी समय। तो क्या आप अपने डेटाबेसेस में और अपने नॉलेज बैंक में वहां तक पहुंच गए हैं कि एक एलेक्सा जैसी सीमैपिया बना दी जाए? लोग कहें सीमैना, सीमैप को बोलें सीमैना, जो आपकी चैट जीपीटी हो, और वो वहाँ प्रश्न पूछें कि मैं फला फला जगह से, मेरी मिट्टी ऐसी है, मैं एक फसल लगाना चाहता हूँ जिसमें मुझे 50,000 रुपये तक का लाभ हो, और वो वहीं उत्तर पा जाए। या वो कहे कि ये मेरी एक फसल में मुश्किल आ रही है, तो आप उसको कहिए कि अपना वीडियो कैमरा खोलिए और उस पर, मतलब वो ऐप हो आपकी, वो ऐप कहे कि आप ये वीडियो कैमरा में उसको दिखाइए अपना पत्ता, और आप कहेंगे अरे ये तो टिक्का बीमारी है, इसका इलाज ये है। तो क्या हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, या कब तक पहुंचेंगे? आवश्यकता तो है कि सीमैप की एक ऐप हो, उस ऐप में बिना किसी व्यक्ति से बात किए हुए हम उत्तर पा सकें, और उत्तर के साथ साथ हम निर्णय भी कर सकें कि हमें आगे क्या करना है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इस समय हमारे पास कुछ ऐसे डिजिटल मैट्रिसेस हैं, और क्या हमारे पास क्रॉप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फॉर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है, जिससे हम बिना किसी चीज़ से, ऐप में भी जाए बिना, उस कार्ड को देखे और उस कार्ड से देखे कि मैं यहाँ हूँ, मेरी इस तरीके की मिट्टी है, मैंने क्या लगा सकता हूँ, मेरे पास क्या संभावनाएं हैं? ये दो प्रश्न थे जो मैंने आपसे जो पूछे। एक जिज्ञासा वाला मेरा अपना प्रश्न है, और एक जो मेरे से जो किसानों के बच्चे और किसान संपर्क में आते हैं, यस सर। उनके तरह तरह से पूछे हुए प्रश्नों का मैंने कंपाइल करके आपसे प्रश्न पूछा है, जो कि सभी को लाभकारी होना चाहिए। थैंक यू सर। एक तो सर जो आप एआई की बात कर रहे हैं, अभी एआई में सीमैप ने शुरू किया है, डॉक्टर मनोज सेमवाल ने। अभी वो अकेले थे, अब उनकी टीम सर बढ़ रही है, तो शायद मैं उनसे बात करूंगा। ये आपका जो है सर, ये वंडरफुल आइडिया है, ये शायद वास्तव में इसी की नीड है जो कि सीमैना होनी करंटली। चाहिए आपकी, जी वो सर। मैना जो सीमैप की हो, सीमैना, जो यस सर। उत्तर दे। और यस सर। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप अगर आउटसोर्स करते हैं इसको, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। इस पे आगे मतलब बढ़ने की काफी, मतलब लैब अभी स्टेब्लिश हो गई है, फार्मर लेवल पे जा रहे हैं, बट लेकिन ये वाला सर अभी नहीं हुआ। इसमें कुछ फार्मर की जो कह रहे हैं सर, आ रही क्वेरी। तो चैट बॉक्स है, हाँ चैट सर, बॉक्स, एक एरोमा ऐप करके है, उसमें है सर चैट बॉक्स। तो उसमें कितने हद तक हम बातचीत कर सकते हैं? सर उसमें जो कनेक्ट है सर, हमारे साइंटिस्ट भी हैं, फार्मर भी है, इंडस्ट्री भी है, ऑल इंडिया है। इवन उसमें सर यहाँ तक है कि अभी डायरेक्टर प्रभोज सर ने उसमें यहाँ तक कनेक्ट कर दिया कि डिस्टिलेशन यूनिट का
जियो टैगिंग भी है कि आप कहीं भी देख सकते हैं कि हमारी डिस्टिलेशन यूनिट कहाँ है। इवन फार्मर से भी लग जाएगा कि सर उस फार्मर के पास किस क्या आयल है, क्या क्वांटिटी का है, उस ऐप से सर ये भी मिल जाएगा। तो एक एरोमा ऐप, उसमें सर CSIR की सारी लैब इन्वॉल्व है जितनी एरोमा मिशन के अंतर्गत है सर। तो उस ऐप का एड्रेस अगर हमारे जो आज सुनने वाले हैं उन तक पहुंच जाए कि वो ऐप कैसे डाउनलोड करें, तो आप डॉक्टर AK सिंह को दे दीजिए, हम अपनी वेबसाइट पे भी डाल यस सर, देते हैं। यस सर, और मैं अगर मैं अभी दे देंगे तो हम नीचे इसको डॉक्टर मनिका विल पुट इट एज ए श्योर सर, फ्लोइंग लाइन, ताकि जो लोग आज देख रहे हैं वो उससे लाभान्वित हो सके। श्योर सर, वो कर देंगे। हाँ। और डिजिटल मैट्रिक्स सर एरोमा मिशन में सारा डाटा तो सर आ गया है, फील्ड का भी आ गया है, बट इसको अब उस जिस फॉर्म में आप कह रहे हैं इसमें करने की जरूरत है, कुछ हद तक अभी स्टार्ट हुआ है, बट लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में सर इसको कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपका चार्ट देखा जिसमें आपने बताया इस तरीके की मिट्टी है तो ये फसल लगा सकते हैं। यस सर, उसके यस साथ सर, इकोनॉमिक्स भी चाहिए ना हमें, हाँ, उसके साथ इकोनॉमिक्स चाहिए। और मैं उस इकोनॉमिक्स पे जब मैं क्लिक करूं तो यस सर, मुझे मिले एक यूट्यूब जिस पे आप शुरू से लेके आखिर तक बता रहे हैं कि ऐसे उगाई थी, ऐसे उसको हार्वेस्ट किया, ऐसे डिस्टिल किया और ये यहाँ बिक गया। केस राइट, केस स्टडीज जो कि सीमैप के पास भरपूर है। श्योर तो सर, अगर राइट, इस तरफ हम चलें तो मैं मानता हूँ कि एकदम से एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं हम। हाँ, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है और ब्लू रिवॉल्यूशन है, तो आप यस, एक ट्रांसपेरेंट रेवोल्यूशन ला सकते हैं एसेंशियल ऑयल्स। यस, थैंक यू डॉक्टर वर्मा। थैंक यू, थैंक यू। The question that I asked were based on my interaction with farmers and also my own. Dr. Singh, जी, may please proceed. तो जी धन्यवाद सर। मैं सभी श्रोताओं से और सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो ईमेल से लिखकर भेज सकते हैं डॉक्टर वर्मा को या सीमैप को या सीधे फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन को, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और काफ़ी आकांक्षाएं हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब नए जो विज्ञान के युग में नए नए जो साधन और ऐप डाउनलोड हुआ है वो उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथियों, मेरा दायित्व बनता है कि मैं डॉक्टर वर्मा को हृदय से धन्यवाद दूं कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ पर उन्होंने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया जिससे सभी लोग लाभान्वित होंगे, विशेष तौर से किसान और उद्यमी और विद्यार्थी और शोधकर्ता भी। एक बार फिर धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। और अपने जो फाउंडर चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर खनुजा को उन्होंने सलाह दी कि वर्मा जी का लेक्चर जरूर कराया जाए इस बार, और वो आज संपन्न हुआ। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर मनिका जो हमारी साइंटिफिक एसोसिएट हैं और उनका बहुत सहयोग मिलता है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और समस्त फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के मेंबरान और जो दूसरे श्रोतागण आज के प्रसारण में हमसे जुड़े, उनको हृदय से धन्यवाद। बिना उनके सफलता का कोई आकलन नहीं हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर।